वेलकम चैंपियंस। यस, मैं मिर्जा हामिद बेग आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके ही चैनल मैथ्स मिनट पे। और आज तहे दिल से इसलिए क्योंकि आज हमारा नया अध्याय नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जो भी लेक्चर्स मैंने लिया उसमें तो हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के बारे में ही चर्चा किया, लेकिन आज द चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट, द जर्नी इज रियली गोइंग टू बिगिन and for it's the lecture is for ICSE class 10th. And as I told in the previous lecture that this lecture will be based on linear inequalities ICSE class 10th, so we will be discussing linear inequalities chapter ICSE class 10th in this video. Now for CBSE class 10th students there will be a next video for linear equations. So for those CBSE students I request them to wait for the next video, and for ICSE class 10 students I request them to join us and enjoy this session. So with the full excitement I'm going to start a new chapter and I hope that you are also giving the heading of this chapter on your copy. Now the chapter is linear inequality. Chapter का name linear inequality. It has been formed by two words. First is linear, पहला word linear, second word inequality. We know that linear means power of the variable involved is 1. जहां पे भी हमें लीनियर टर्म दिखाई दे इसका मतलब ही होता है जो भी वेरिएबल एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है उसकी जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी. एंड inequality such a statement in which signs like greater than equal to, less than equal to, greater than and less than are involved. यहाँ कुछ साइंस इन्वॉल्व रहते हैं जो कि 4 बेसिक साइंस ऑफ इनइक्वालिटी कहा जाता है जिन्हें. फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सेकेंड इज लेस देन इक्वल टू, थर्ड इज ग्रेटर देन एंड फोर्थ इज लेस देन. सो मैं बेसिकली क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ, ऐसा कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनमें इन 4 साइंस का यूज हो उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल -2x is greater than 5. What is this? This is a linear equation. Why? Because the sign greater than has been involved in this statement. अब second example भी देख लेते हैं. 2 is greater than 1. So this is also an inequality because it's showing that 2 is greater than 1 and the sign involved is greater than. Third is 2 greater than equal to 1. Here 2 is either greater or equals to 1. So one condition is true and another is false. Means any one of the condition has to be true for the mathematical statement to be true. Fourth, ऐसे इस स्टेटमेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे दो कंडीशंस होते हैं, या एक ग्रेटर देन हो या तो लेस देन. तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये कुछ और टाइप कंडीशन है. वी हैव एन ऑप्शन है, either the number has to be greater than 1 or it has to be equal to 1. So here 2 is greater than 1 but 2 is not equal to 1. तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट और ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है ये ट्रू है क्योंकि एक कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है. आई होप दैट यू आर गेटिंग. नाउ द फोर्थ एग्जांपल इज of less than equal to. 3 is less than equal to 2. Now see, here again we have option. 3 is less than equal to 2. So 3 is less than equal to 2. But here we are having two options. वो two options क्या है? 3 is equal to 2 or 3 is less than 2. But we are seeing
हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या ट्रू नहीं, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नाउ व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? बेसिक definition of linear inequations. इसका बेसिक डेफिनेशन होगा क्या? ऐसे तो ये सारा एग्जांपल्स हैं. मान लिया आपसे कोई क्वेश्चन करे कि दैट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज, सो व्हाट विल बी योर आंसर? द आंसर इज इफ a, b and c are three real numbers, then ax plus b greater than c, comma ax plus b less than c, comma ax plus b greater than equal to c, and ax plus b greater than less than equals to c are called linear inequations or inequalities. ना इसमें हम लोग ने क्या समझा, ये तो हुआ इंग्लिश. इसमें कई स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख के दिया है. ये आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट एनालाइज करना होगा. कैसे एनालाइज करते हैं देखें. आइए देखिए, जैसे ए बी एंड सी, मैंने कोई 3 जनरल वेरिएबल लिया ए बी एंड सी, एंड आई टोल्ड दैट ये 3 रियल नंबर्स होने चाहिए. आई होप दैट आप मैथमेटिक्स के बेसिक लेक्चर्स देख के हैं. रियल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. तो रियल नंबर्स होने चाहिए और इनमें से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे. इनमें से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, या तो ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी हो, जहां एक्स का क्या होना चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल देखने वाले हैं. ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 2x प्लस 3 greater than 5. So here a is 2 and b is 3. In this case ax plus b less than c. Same example here, 2x plus 3 less than 5. Now the inequality sign has changed. तो इन दोनों कंडीशंस को कोई सेटिस्फाई करे या इसको कोई सेटिस्फाई करे, 2x plus 3 greater than equal to 5, या इसको कोई सेटिस्फाई करे. इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा? 2x plus 3 less than equal to 5. तो इन चारों कंडीशंस में किसी को भी सेटिस्फाई करे, उस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी. आई होप आपने नोट कर लिया है. मैं रब करने जा रहा हूँ. नाउ बिफोर वी गो डीप इन द चैप्टर, हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन समझना होगा. व्हाट आर दैट रिलेशन? फर्स्ट रिलेशन इज if a is any real number and a is greater than 0. इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का हमें मीनिंग समझना है कि ये स्टेटमेंट हमें बोलना क्या चाह रहा है. ये स्टेटमेंट हमें ये बोलना चाह रहा है कि a कोई भी एक रियल नंबर है जो कि 0 से हमेशा बड़ा है. इसको टेक्निकल वे में क्या समझते हैं हम लोग? दैट a is positive बिकॉज 0 से कोई भी बड़ी संख्या लोगे तो वो नंबर लाइन पे हमेशा टू द राइट ऑफ 0 ही प्लॉट होगी. जस्ट वी हैव टू शो हियर. नाउ दिस इज 0, दिस इज 0, तो ये कहाँ प्लॉट होगी? ऐसे कहाँ प्लॉट होगी? 0 से राइट. सिमिलरली इफ second relation is if a is any real number and a is less than 0, then इसे टेक्निकल वे में हम लोग समझते हैं that a is negative. A is what? Negative. Now again we have to plot it on a number line. On the center there will be 0
एंड नेगेटिव संख्या, एज वी नो दैट नेगेटिव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो होते हैं, तो हम लोग कैसे लोकेट करेंगे इसे, हॉलो सर्कल ऑन जीरो टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, ओके। एंड कई लोग इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, इस पे ही हॉलो सर्कल और नंबर लाइन पे ऐसे शेड कर देते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज if a is real number and a is less than equal to 0, it means negative और 0। a का नेचर, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम लोग समझ सकते हैं कि a का नेचर कैसा होगा, या तो नेगेटिव होगा या क्या होगा, 0 होगा, ओके, या नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो इसे फिर हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ये है 0, नेगेटिव या 0, सो नेगेटिव या 0 तो टू द लेफ्ट ऐसे, और इस पे जो है डार्क सर्कल हो। ऑलवेज रिमेंबर अगर कहीं पे भी लीनियर इनइक्वालिटी में ये साइन आ जाए लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, मीन्स इनइक्वालिटी में इक्वल टू साइन आए, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त हमें उस नंबर पे डार्क सर्कल देना है, और अगर इनइक्वालिटी साइन में इक्वल टू साइन इन्वॉल्व ना हो तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त नंबर पे क्या देंगे, हॉलो सर्कल। मेरे साथ तीन चार बार बोलिए ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त मिस्टेक ना करें। इफ a is any real number and a is greater than 0, and then now it means positive or 0 मीन्स एक कौन सा वैल्यू असाइन कर सकता है, या तो पॉजिटिव वैल्यू या 0, या पॉजिटिव या 0। मेरे साथ बोलिए, 3 बार 4 बार बोलिए, या पॉजिटिव या 0, या पॉजिटिव या 0, मीन्स a is greater than equal to 0, it means a is positive or 0। कई बच्चे इसे टेक्निकल वे में नहीं समझते हैं, वो क्या बोलते हैं, a is greater than 0, it means that a की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। लेकिन आपको इसे टेक्निकल वे में समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे लिखा रहता है इफ a is greater than 0 then how it will be plotted, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे आपको समझना होगा कि a is greater than 0 मींस पॉजिटिव, आपको ये ब्रेन में ही रख के चलना होगा, ओके। नाउ अगेन वी हैव टू प्लॉट इट, हाउ वी विल प्लॉट, same method, again in the center 0, a is greater than or equal to 0, so the right path, and dark circle on the 0, so ये थे कुछ अफलातून रिलेशंस, these were the अफलातून relations, so we will be using these relations, they are important, so please note down this. Now should we give some name in this? Yes, अफलातून relation। सर अफलातून क्यों? अफलातून इसलिए क्योंकि ये रिलेशंस काफी काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? इन द होल मैथमेटिक्स यू विल गेट इट, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट टेक्निकल। कई लोग को ये पहले से आता होगा तो अच्छी बात है, आता है, लेकिन ये लीनियर इक्वालिटी चैप्टर है, ये तो मेरा फर्ज बनता है कि एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को कवर कराते हुए चलूं, तो इसे आप नोट करें, पॉज करके नोट कर लिए, मैं रब कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल को हम जनरल वैल्यू मान लिए a, और वो अगर रियल नंबर है एंड इफ इट्स रिटन a इज ग्रेटर देन 0 देन इट मींस पॉजिटिव, a इज नेगेटिव इफ a इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस a can assign two types of values, either positive either 0, a is less than equal to 0 means negative or 0. These were the Aflatun relations, okay, and we have also seen what representation of number lines. नंबर लाइन्स को कैसे प्लॉट करते हैं, जैसे a ग्रेटर देन 0 को प्लॉट कर रहे थे, तो उस नंबर पे 0 पे हम लोग हॉलो सर्कल ले रहे थे, एंड देन जिस डायरेक्शन में वो जो भी वैल्यू असाइन कर सकता है वहां तक एरो दिखा रहे थे। ये आप नंबर लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं या ऊपर से भी दिखा सकते हैं, कई लोग शेड करके दिखा देते हैं, शेड करके भी दिखा सकते हैं आप। सिमिलरली a इज लेस देन इक्वल टू 0, तो हम लोग डार्क सर्कल ले लिए लेस देन इस डायरेक्शन में, एंड 0 विल बी ऑन
ऑन द जीरो देयर विल बी अ डार्क सर्कल, क्योंकि इक्वल टू साइन इन्वॉल्व है इनइक्वालिटी में। मेरे साथ साथ बोलिए, इक्वल टू साइन इन्वॉल्व है इनइक्वालिटी में। दैट्स व्हाई वी आर असाइनिंग डार्क सर्कल ऑन द नंबर। ओके, नाउ शुड वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक? यस, फॉर श्योर वी शुड स्टार्ट। The new thing in this chapter is basic rules, basic rules of inequality. बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। भैया यहाँ भी रूल्स फॉलो करते करते हम लोग काफी बोर हो जाए, लेकिन यहाँ आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने वाला हूँ। आराम से देखते जाइए। पहला रूल है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, if a and b are two real numbers and a is greater than b, then a plus k is greater than b plus k. A plus k is always greater than b plus k, where k is the number added or subtracted. नाउ ये जो इतना बड़ा डेफिनेशन मैंने लिखा, या आप बोले रूल 1 लिखा, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ए और बी कोई दो रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर है और इस तरह से अरेंज्ड है, इस तरह से क्या है, अरेंज्ड है, तो a प्लस के इज ग्रेटर देन b प्लस के होगा, वेयर k इज द नंबर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मीन्स इसमें हम k ऐड करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे, इधर k ऐड करेंगे तो इधर भी k ऐड करेंगे। तो हम लोग ने क्या देखा कि इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रहता है। क्या देखा हम लोग ने? इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रहता है। a इज ग्रेटर देन b है और हम k जोड़ रहे हैं, तो इनइक्वालिटी साइन कैसा रहेगा? एज इट इज रहेगा। क्योंकि अगर कोई नंबर 2 है और वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें आप कुछ और जोड़ते हैं, तो बड़ी संख्या में और बड़ा जोड़ने पे और बड़ा हो जाएगा, छोटी संख्या में थोड़ा बड़ा जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, छोटी संख्या में थोड़ा संख्या, वो सेम नंबर को जोड़ने पे, के को जोड़ने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो ए प्लस के तो छोटा ही होगा बी प्लस के। इट्स वेरी लॉजिकल। सो दिस इज द फर्स्ट रूल इज व्हाट? that inequality sign do not reverse on adding any quantity. K can be positive, k can be negative, k can also be zero. So inequality sign remains same. inequality sign नोट करके ही लिख लेते हैं हम लोग। इनइक्वालिटी साइन क्या रहता है? सेम। इनइक्वालिटी साइन क्या रहता है? सेम। बादल में, अच्छा ये बादल वाला कॉन्सेप्ट काफी सारे बुक्स में भी रहता है। क्या रहता है? कॉन्सेप्ट रहता है, आई मीन टू से दैट बादल बना के इंपॉर्टेंट रिलेशंस लिख दिया जाता है। अब अपने नेटिव लैंग्वेज में भी नोट्स यहाँ डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है अगर सेम नंबर के को दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। बड़ी संख्या में से या आप के को घटाएं तो घटाने पे क्या होगा? बड़ी संख्या में से जो भी घटेगा और छोटी संख्या में सेम नंबर घटेगा, तो बड़ी से जो घटने में जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा ग्रेटर देन होगा। वेरी लॉजिकल। दैट्स व्हाई ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? इनइक्वालिटी साइन में, या इनइक्वालिटी साइन सेम रहता है अगर सेम नंबर के को दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। दिस वाज योर नोट, यू कैन आल्सो राइट इट डाउन। भैया इसमें आधा इंग्लिश आधा हिंदी नहीं, ये नेटिव लैंग्वेज हुआ। नोट्स लिखने का ये नेटिव लैंग्वेज हुआ। ऐसे ही हम लोग भी समझते हैं। हम लोग जैसे करते थे तो यहाँ बादल तो नहीं बनाते थे, लेकिन साइड में हम लोग नोट्स बना लेते थे ताकि मुझे अपने नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग को मैथमेटिकल रिलेशन समझ में नहीं आता है,
तो ऐसे हम लोग बना के लिख सकते हैं ना। सेकेंड रूल, इफ a and b are two real numbers, if a and b are two real numbers, okay, then ak is greater than bk. Ak means k is being multiplied, k is being what? Multiplied. If k is positive. Now अगर a and b कोई दो रियल नंबर्स हैं और कोई k नंबर मैं लिया और मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया k से, and if k is positive, then again the sign of inequality will not reverse. क्यों? क्योंकि k पॉजिटिव है, पॉजिटिव यहाँ पे भी है, पॉजिटिव यहाँ पे भी। अगर किसी बड़े नंबर पे कोई सेम नंबर 2 को जैसे मैं मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एग्जाम्पल के ही जरिए समझा देता हूँ। दैट एग्जाम्पल इज 2 is greater than 1. Now there are two numbers, 2 and 1. K is any positive number, I am assigning it 3. 2 into 3 greater than 1 into 3. 2 into 3 will give what? 6. 1 into 3 will give us what? 3. So आप देख सकते हैं बड़ी नंबर में बड़ी नंबर में 3 मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, छोटी नंबर में मैंने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर a एंड b दो रियल नंबर्स हैं और k कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं पलटता। अगेन सेम वाली बात आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कैसे? बादल बना के, ऐसे बादल बना के, बादल के अंदर आप अपने नेटिव लैंग्वेज में या अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं इनइक्वालिटी साइन नहीं पलटेगा। इतना वल्गर कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट्स बना रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इनइक्वालिटी साइन नहीं पलटेगा अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं डिवाइड क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो एक तरह से क्या होता है, डिवीजन ही होता है। सर ये क्या बोल दिया मैंने, क्या बोला? सुनो, अगर मैं k को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k को क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल हेयर 3 इज द k, वैल्यू ऑफ k इज 3, ओके। मैं एक तरीके से इसे डिवाइड भी तो कर रहा हूँ। क्यों? देखो 2 डिवाइडेड बाय 1/3, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ग्रेटर देन क्या? 1 डिवाइडेड बाय 1/3, ऐसे मैं कर ही सकता हूँ, फॉर श्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो फिर ये तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है 2 into 1 2 into 3 greater than 1 into 3 means you are finding that these both are same statements. तो कोई इसको ऐसे एनालाइज कर ले, कोई इसे ऐसे एनालाइज कर ले, बट बात तो वही रहने वाली है कि अगर डिवाइड करता हूँ सेम पॉजिटिव वैल्यू से तो क्या होना चाहिए? सेम पॉजिटिव वैल्यू से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं पलटना चाहिए। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई में अगर पॉजिटिव वैल्यू से करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं पलटेगा। Now the third rule is if a is greater than b, then ak is less than bk. If k is negative. Now इसका ठीक उल्टा, अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ऑब्वियसली यहाँ ए भी रियल नंबर से मैंने लिखा नहीं है, आपको कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा कि ए भी मैं रियल ले रहा हूँ क्योंकि नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है, ठीक है। ए के जो है बी के से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि के यहाँ पे मैं क्या रहा हूँ? नेगेटिव। तो बड़ी संख्या में अगर तुम नेगेटिव वैल्यू कोई मल्टीप्लाई करते हो तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटी संख्या में अगर कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हो तो उसके कंपैरिजन में वो बड़ा ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझे क्या? एग्जाम्पल क्या है? अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव 2 ग्रेटर देन 1, मान लिया हम एक साइड नेगेटिव लेते हैं, एक साइड पॉजिटिव लेते हैं। कई को कंफ्यूजन रहता है कि भैया ने तो मतलब इसको एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरे तरफ भी पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव तो दूसरे नेगेटिव, इस टाइप से समझाया, लेकिन मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी लेके समझा रहा हूँ। देखो 2 इज ग्रेटर देन -1, ये होता है ए है। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग, लेट्स सपोज -3, 2 into -3
एंड -1 इंटू -3। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा निकलेगा? इसका वैल्यू आएगा -6 और इसका वैल्यू आएगा 3। कौन बड़ा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू? फॉर श्योर पॉजिटिव वैल्यू ही बड़ा होगा। इसी तरीके से अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, लेस देन इक्वल टू है कि कई कंफ्यूजन रहता है सिर्फ लेस देन पे। नहीं 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 नहीं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, ये सारे पे एप्लीकेबल होगा, सारे पे। यहाँ पे भी वही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चारों पे एप्लीकेबल होगा। रूल 1 या रूल 2 की बात करो तो वो भी वही है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मीन्स जो भी मैं रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी बता रहा हूँ वो चारों साइंस के लिए क्या है, वैलिड। ठीक है, नाउ दीज वर द 3 रूल्स which I have discussed today, and you have to revise these concepts because in the next class I am going to use this. What I am going to use this? These all 3 rules. And yes, ये बादल वाली चीज जो है, बादल वाली चीज आप इसे शॉर्ट नोट्स की तरह भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मान लेते हैं किसी मैथमेटिकल रिलेशन को आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ये आपको मदद करेगा, आपका नेटिव लैंग्वेज, आपका नेटिव भाषा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, keep revising, keep studying with Josh, and take care of your family and yourself. Bye bye.